Now, this is where our first part ends, and moving on to the next part of the chapter. Yeah, the chapter is same, but in the second part, as I've mentioned before also, what happens in the second part, you will find them peeping into the window, looking at Lalli, how she plays the violin, and a beggar appears. So this is all we are going to read about. So what happens now after the screeching sound, if you remember at the end of the first part, what happened? There was a screeching sound. So now they were very curious, especially Mridu was very curious that who is Lalli and how, how is she playing the violin and the music master. So you will see that they are peeping through the window, all three of them, and they also describes the way Lalli is playing the violin and the music master, both of them. So what happens is three of them looking through the window, Lalli was awkwardly holding the violin. So now you will see that Lalli is actually learning to play, but she's not a pro, she's not a professional, or she doesn't know how to play it really well. So she was holding it very awkwardly. You will see that the way she's holding the violin is very awkward, and the way you will see the music master holding the violin, you will see that he's holding very firmly, and he's very okay with that. And even when they are listening to the music, there is so much of difference कि जैसे वो बजा रही है और म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं, there is so much of difference. उसकी तो अगेन इसकी derailed है ट्रेन, और म्यूजिक मास्टर बहुत ही अच्छे से बजा रहे हैं. So this is how they compare. Now in these two lines you will see कि यहाँ पे they were actually, the author was actually describing कि उसने पकड़ कैसे रखा है, उसकी positioning क्या है लल्ली की, जैसे उसने वायलिन को पकड़ रखा है. So first of all he says that her elbow jutting out like this, you can see in this picture, and eyes glazed with concentration. मतलब अपनी तरफ से लल्ली ना म्यूजिक सीखने के लिए बहुत concentration से focused बैठी थी, but she was very awkward with it. This was the whole scenario. In this picture also you look at this music master very carefully, and we'll be talking about this music master, his appearances and how he looked. So you could see in the picture that mostly bald था, उसके सर पे बाल नहीं थे. तो bald is like without head. So a fringe of oil black hair. Here you will see कि इसकी छोटी सी tail आ रही है. So that is the fringe which is oiled, मतलब तेल लगाया हुआ है उसने बालों पे. Around his ears, hair falling around his ears. Ears के पास भी उसके बाल है, and wore an old fashioned tuft, the one he's wrapped it here. You know, this is tuft, the one he's wrapped in the neck. So this is the old fashioned tuft जो music master ने डाला हुआ है. He's wearing rings and ring, diamond ring, and a gold chain around his neck. So this is how you can mention the appearances of the music master. So he played a few notes. Lalli stumbled behind him. So what happened? उन्होंने एक दो notes play किए music master ने, और Lalli stumbled. Stumble means fell. Like fell actually वाला गिर नहीं गई, but वो बजा नहीं पा रही थी जिस तरीके से उसके म्यूजिक मास्टर इतना अच्छा बजा पा रहे थे. सो यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे थे पूरे सीन को कि अंदर जब उन्होंने विंडो से पीप किया उन तीनों ने, तो अंदर क्या हो रहा था. तो उतनी देर में व्हाट हैपेंड, अम्मा केम अ वेल. वेल मीन्स अ क्राई. सो अम्मा केम द वेल फ्रॉम अ गेट. अम्मा ओ अम्मा. नाउ यू विल बी वेरी फेमिलियर कि हमारी गलियों में भी कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती हैं. तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि अम्मा अम्मा करके वहाँ पर एक बेगर आ रहा था, और इससे स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि वो बेगर एक हफ्ते से कॉन्टिन्यूसली उनके घर पे आ रहा था. सो रवि वाज आस्क्ड टू सेंड अवे द बेगर. अब वो एक हफ्ते से कंटिन्यूसली आ रहा था, तो उनको पहले अंदर अम्मा को पता चल गया था कि कौन है, एंड शी सेड दैट प्लीज इसको वापस भेज दो. सो रवि वाज आस्क्ड टू सेंड अवे द बेगर. Pati explained Tapi. Now here she was explaining that the beggar has been coming here every day the past week. वो कहते पिछले हफ्ते से हर रोज़ आ जाता है, हम इसको हर रोज़ कुछ ना कुछ दे देते हैं, बट ये ऐसा बेगर है कि ये तो अब हम पे चिपक ही गया, लाइक ही स्टक टू आवर हाउस. अब तो ये रोज़ ही यहाँ पे आ जाता है, रोज़ हमसे मांगने लग जाता है. सो मृदु मीना ने क्या किया, दे फॉलोड रवि. रवि को बोला था उसको बेगर को बोलो बाहर जाके दैट प्लीज गो अवे, अब हमारे पास कुछ नहीं है तेरे को देने को. सो दे वर फॉलोइंग. मृदु और
और मीना उसको फॉलो कर रहे थे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. नाउ द बेगर मेड हिम. अब जब तक वो लोग बाहर पहुंचे बेगर को ये कहने कि आप यहाँ से चले जाओ, तो उस सीन में उन्होंने क्या देखा, बेगर ऑलरेडी कंफर्टेबली ट्री के नीचे बैठा था. वो इस तरीके से बैठा था, उसको जैसे लग रहा था ये तो उसका खुद का ही घर है और खुद के लॉन में वो रेस्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट यू विल सी दैट ही वाज ऑलरेडी सीटेड एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल इन द गार्डन. एंड रवि आस्क्ड द बेगर टू गो अवे. जैसे रवि को बोला था कि उसको भेज दो, तो उसने बोला यार प्लीज गो अवे. सो द बेगर प्लीडेड अगेन. प्लीडेड मीन्स ही अगेन रिक्वेस्टेड एंड रेज्ड हिज वॉइस. अब उसको लगा यार ये तो अभी बच्चे ही मना कर रहे हैं, मैं दोबारा आवाज लगाता हूँ. तो उसने दोबारा आवाज लगाई, अम्मा ओ अम्मा. सो व्हाट हैपेंड, रुक्मणी ने लाइक उसकी मॉम ने अंदर से ही रिप्लाई किया. समटाइम्स अ मदर रिप्लाई सो लाउडली कि अगर कोई घर के बाहर भी खड़ा है और वो अंदर से बोल रहे तो बाहर वाले को सुन जाएगा. तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ कि उसकी मम्मी ने इतना ऊंची बोला कि यार उसको बोलो तुम चले जाओ, हमारे घर में कुछ नहीं रह गया. और उसकी मम्मा ने ये ऐड किया कि रवि यार उसको बोल दो. बट रवि भी वहाँ पे खड़ा था, बेगर भी वहाँ पे खड़ा था और दोनों को सुन गया था. तो रवि ने कहा कि अब मुझे ज़रूरत तो है नहीं रिपीट करने की, मम्मा ने इतना लाउडली बोला है कि बेगर को सुन नहीं गया होगा. सो बेगर को सब कुछ सुन गया था कि यहाँ से चले जाओ. सो बेगर सेड, दिस इज व्हाट द बेगर सेड, ही सेड आई विल गो, मैं चला जाऊँगा. He said wearily. Wearily means very tired he was. Only let me have rest here under this tree. He said कि मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे ना थोड़ा रेस्ट करने दो. I'm very tired. And you know ये ध्यान में रखना, you have to keep in mind that the day was very sunny. It was a very sunny day. It was very hot outside. And let's see what the beggar says next. He says that the sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. Blistered means उसकी पैरों पे छाले हो रखे थे. अब क्यों छाले हो रखे थे? Which automatically मीन्स कि उसके पास कुछ पैरों में डालने के लिए नहीं था. ही वॉज नॉट वेयरिंग लाइक एनी फुटवेयर, उसके पास कुछ भी नहीं था. और उसने फिर अपने ब्लिस्टर्स दिखाए, दे वर वेरी रेडिश एंड पिंकी. जैसे अभी मतलब वो होते हैं ना लाइक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा उसके ब्लिस्टर्स हो रखे थे, तो वो रेड और पिंकिश से थे. तो उसने अपने ब्लिस्टर्स भी दिखाए. नाउ व्हाट हैपेंड, वहाँ पे मृदु भी खड़ी थी, मीना भी खड़ी थी. दे वर फीलिंग वेरी सैड फॉर द बेगर कि यार इसके पास तो चप्पलें ही नहीं और अब ये बाहर धूप में जाएगा, इतनी धूप में जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब नाउ जस्ट लाइक वी किड्स आर, अगर हम किसी बेगर को देखें तो हमें भी उस पर दया आएगी कि यार उसके पास तो चप्पलें ही नहीं है डालने को. सिमिलरली मृदु ने ना विस्पर किया अपने कज़न के कानों में. उसने बोला यार इसके पास तो कोई पैसे नहीं है. दिस इज़ हाउ शी विस्पर्ड. शी सेड दैट ही हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स. इसके पास तो पैसे ही नहीं है. एंड फिर उसने कहा यार व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. मृदु ने रवि को बोला यार प्लीज़ कुछ कर, जैसे हम अपने कजन्स को बोलते हैं ना, उसने अपने कज़न को बोला यार कुछ कर यार, दिस इज नॉट फेयर. सो मृदु वॉज रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. शी सेड दैट दिस इज नॉट फेयर. उसके पास पैसे नहीं है, उसके ब्लिस्टर्स है, कुछ करो कुछ करो. सो रवि ने कहा प्लीज बी क्वाइट एंड लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. सो व्हाट हैपेंड, रवि ने बोला लेट्स गो इनसाइड द होम एंड लुक फॉर सम चप्पल्स. नाउ विच गेव दोज ब्लैक चप्पल्स. नाउ विच ब्लैक चप्पल्स. अब क्या हुआ सीन में, अब वो सारे तीनों के तीनों अंदर चले गए एंड दे वर लुकिंग फॉर चप्पल्स के कोई एक्स्ट्रा चप्पल्स मिल जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल रवि ने सोचा कि मैं अपनी खुद की चप्पल्स दे देता हूँ इसको. देन रवि थॉट दैट मेरी चप्पल्स तो बहुत छोटी है, मृदु की भी बहुत छोटी है, इतने बड़े बेगर को हमारी छोटी चप्पलें कैसे आ जाएंगी. देन दे अगेन वेंट इनसाइड लुकिंग फॉर द स्लीपर्स एंड वो वेरांडा में से जा रहे थे. फिर वेरांडा में उन्होंने एक ब्लैक चप्पल्स का पैर देखा. जो इनिशियली हमने देखा था वो ब्लैक स्लीपर्स देखे उन्होंने विच वर वेरी वॉर्न आउट. और किसी ने भी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने पुराने हैं और कितने टाइम से वो किसी ने यूज़ ही नहीं किए. जैसे हमारे घर में भी कोई ऐसे चप्पल पड़ी रहती है ना जो कोई यूज़ नहीं करता, तो वो एकदम ऐसी ही लग रही थी. सो दे डिसाइडेड कि उनको पता नहीं था किसकी चप्पल है. सो दे डिसाइडेड दैट लेट अस गिव दिस चप्पल टू द बेगर एंड ही विल बी हैप्पी एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. सो उन तीनों ने क्या किया, दे टुक दोस चप्पल्स और उन्होंने जाके वो बेगर को दे दी. नाउ दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी कि हमने एक पुअर बेगर की हेल्प की है. सो दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट नाउ यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि वो चप्पलें एक्चुअली में किसकी निकली. वो स्लीपर्स एक्चुअल में वो इतने वॉर्न आउट स्लीपर्स किसके थे, वो म्यूजिक मास्टर के थे. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द क्लास लाइक आफ्टर फिनिशिंग द म्यूजिक क्लास विद लल्ली एंड म्यूजिक मास्टर वाज लुकिंग फॉर हिज चप्पल्स हियर एंड देयर कि मेरी चप्पलें कहाँ गई. सो म्यूजिक मास्टर ने क्या किया,
म्यूजिक मास्टर कॉल लल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल। उन्होंने कहा लल्ली मैंने अपनी चप्पलें यहाँ ही उतारी थी, कहाँ गई, मेरी चप्पलें कहाँ है? सो उसने ऐसे क्वेश्चनिंग की एंड देन ही सॉ दैट द थ्री ऑफ देम लाइक मृदु, मीना एंड रवि वर सिटिंग अंडर अ ट्री। उन्होंने ना उसको ऐसे बड़ी अनअप्रिशिएटिव लुक से देखा म्यूजिक मास्टर ने। वो अनअप्रिशिएटिव लुक से क्यों देखा? बिकॉज दे वर प्लेइंग विद मार्बल्स। सो अगैन उसने उनको इग्नोर कर दिया उन सब बच्चों को एंड ही अगैन वाज लाइक वेयर आर माई चप्पल्स, वेयर आर माई स्लीपर्स, लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, म्यूजिक मास्टर तो शुरू ही हो गए, मतलब वो यू नो अब जैसे उनकी कोई चीज़ घूम गई तो वो सब झूठ बोल रहे थे, लाइक उल्टा बोल रहे थे। ही सेज दैट इट वाज वेरी ब्रांड न्यू एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। और म्यूजिक मास्टर ने लल्ली को ये भी बोला कि आपकी जो 1 मंथ की फीस है ना उतने की मेरी चप्पल आएंगी, 1 महीने की फीस लग जाएगी उसमें। सो ये सब म्यूजिक मास्टर बोल रहा था और उसकी चप्पलें नहीं मिली। सो अब लल्ली वाज आल्सो शी गॉट पैनिक्ड और लल्ली वेंट इनसाइड एंड कॉल्ड रुक्मणी। सो आल्सो ही मेंशन्ड वन थिंग, उसके म्यूजिक मास्टर ने बोला दैट ही हैड गॉन टू ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। ही वाज स्पीकिंग ऑल, इट वाज ऑल लाई बिकॉज यू सीन इनिशियली हाउ द चप्पल्स लुक्ड। सो अब लल्ली तो डर गई। लल्ली ने क्या किया, लल्ली वेंट इनसाइड एंड टोल्ड रुक्मणी अबाउट एवरीथिंग दैट ही इज अनएबल टू फाइंड हिज स्लीपर्स। तो रुक्मणी का रिएक्शन कैसे होगा, आपकी मॉम का कैसे रिएक्शन होगा? उनको एम्बैरेसमेंट होगी ना कि अगर घर से कोई चीज गुम हो जाती है। सो रुक्मणी वाज आल्सो एम्बैरेस्ड एट दिस सीन एंड पाती आल्सो सेड, पाती आल्सो केम इनटू द पिक्चर, द ग्रैंडमदर। शी सेड कि यहाँ पे ना बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं, वेंडर्स यानी कि छोटे मोटे सेलर्स जो हमारे गली में आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे छोटे मोटे वेंडर्स आते रहते हैं, किसी ने भी चुरा ली होगी। दिस इज व्हाट द पाती हैड टू से। बट स्टिल व्हाट हैपेंड, अभी भी वो ढूंढ रहे थे। पाती ने बोल दिया यार किसी ने चुरा ली होगी, बट रुक्मणी ने देखा कि ऑल 3 ऑफ देम वर सिटिंग डाउन द ट्री। नाउ दे वर लाइक, उन्होंने तीनों को देखा एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, हैव यू सीन म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स लाइक दैट? सो अब इन सब में से सबसे ज्यादा इनोसेंट थी मृदु, ऑफ कोर्स वो थी भी उनकी गेस्ट। अगर आप भी किसी के घर जाओ तो हम डर जाते हैं, यू नो ऐसा कुछ सीन हो जाए। सो मृदु भी डर गई एंड शी स्टार्टेड शिवरिंग। सो शिवर करते करते उसने सब कुछ सच बता दिया रुक्मणी को। येस वी गेव दोस चप्पल्स, उसने सब कुछ बता दिया कि हमने बेगर को ऐसे वो चप्पल्स दी, बट इन रिटर्न ऑब्वियसली हमारे मदर्स होते या किसी के भी मदर होते वो अनॉयड हो जाते, गुस्सा हो जाते। सिमिलरली रुक्मणी वाज आल्सो अनॉयड। रुक्मणी वाज लाइक कि यार आजकल के बच्चे कैसे से है। पाती ने भी ये बात बोली कि कैसे से ऐसे आप किसी की भी चीज़ें उठा के दे देते हो। सो इन हर माइंड मृदु वाज थिंकिंग दैट अगर उन्होंने एक्चुअली में बेगर के ब्लिस्टर्स देखे होते, उनको पता चलता कि हाउ मच पेन ही वाज गोइंग थ्रू, तो वो इतना गुस्सा ना करते। शी वाज यू नो कंसोलिंग हरसेल्फ, अपने आप को खुद ही समझा रही थी वैसे। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, Ravi gives example of Karan. Karan, like he was a very kind person and he used to you know give to beggars a lot of his money in the form of jewelry and used to help beggars. So he gave the example of Karan that mom Karan भी तो ऐसे करता था। So उसके मम्मा ने उसको समझाया कि वो अपनी चीज़ें लोगों को देता था, ये नहीं कि किसी और की उठा के दे देता था। So Ravi in his defense, रवि ने अपने डिफेंस में बोला कि मम्मा अगर मैं अपनी चप्पलें देता वो तो बेगर को पूरी आनी नहीं थी, तो मेरे को किसी और की देनी पड़ी। सो अब उसके मम्मा ऑलरेडी गुस्से में थे, वो और गुस्सा हो गए एंड शी सेड गो इनसाइड, मतलब उन्होंने उसको गुस्से में बोल दिया अब स्ट्रेट अवे गो इनसाइड। सो रवि वेंट इनसाइड। रुक्मणी वाज वेरी एंग्री एट रवि दैट पॉइंट। सो व्हाट हैपेंड, रुक्मणी वाज थिंकिंग कि अब क्या करे, उसको बेगर को कौन सी चप्पलें दे। सो रुक्मणी गोज इनसाइड एंड गोपू मामा, जो मृदु के गोपू मामा थे, उसकी जो हार्डली वॉर्न आउट चप्पल्स थी, हार्डली वॉर्न आउट मीन्स दे वर हार्डली यूज, दे वर ब्रांड न्यू चप्पल्स। ओके, सो वो चप्पल्स बाहर ले आए और उन्होंने म्यूजिक मास्टर को वो चप्पल्स दे दी रुक्मणी ने। नाउ म्यूजिक टीचर वाज वेरी हैप्पी एंड हिज आईज लिट अप विद जॉय, बट वो ये सब खुशी दिखाना नहीं चाह रहा था म्यूजिक मास्टर। वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहा था? क्योंकि अगर हमें अपनी चीज़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए और हम बोल रहे थे भाई मेरी चीज़ तो बहुत अच्छी है, तो उनको पता चल जा रहा था ना कि उसकी चप्पलें तो बहुत वॉर्न आउट थी। सो म्यूजिक मास्टर वाज बेसिकली ट्राइंग टू हाइड हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी को वो छुपा रहा था कि मैं ज़्यादा खुश होकर प्रिटेंड ना करूँ, बट इनसाइड ही वाज वेरी हैप्पी। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द सीन, नाउ रुक्मणी वेंट इनसाइड। रुक्मणी ने मृदु और मीना को बुलाया अंदर कि चलो लेट्स ईट समथिंग, एंड शी टुक देम टू द किचन। नाउ व्हाट हैपेंड, रुक्मणी स्टार्टेड लाफिंग शी स्टार्टेड लाफिंग हरसेल्फ इन द किचन। नाउ दे वर थिंकिंग कि क्या हुआ, वो हंस क्यों रही है रुक्मणी। नाउ रुक्मणी देन सेड, रुक्मणी कहती कि जैसे तुम्हारे गोपू मामू आते हैं ना, वो मृदु को बताने लगी
जाएगी कि जैसे तुम्हारे गोपू मामा आते हैं, ही टेक्स ऑफ हिज शूज, अपने जूते उतार देते हैं उसी वक्त और अपनी चप्पलें डाल लेते हैं क्योंकि उनको चप्पलें डालनी होती है। एंड शी वॉज लाफिंग बिकॉज शी वॉज थिंकिंग कि आज अगर गोपू मामा आके चप्पलें मांगेंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी कि मैंने आपकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी। सो शी वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, एंड ऑन दिस थॉट ही like she was very she was giggling on this thought. So this is where the chapter ends, and this was the whole storyline of the gift of chappals, that how they gifted those chappals to the beggar, and at the end you will see that music teacher was happy by getting the new chappals. So you know, in this thing you can see both of them, like two persons got chappals. The one was the beggar, the other one was the music teacher. So I hope that this lesson is clear to you guys. In our next video, we'll be talking about the question answers of this chapter. So till then, take care.